You are gathering at this point of time, and we move forward with the other updates of the heartbreaking incident of Radhika Yadav murder case, where Radhika's father shot his daughter to death. Radhika's mother, Manju Yadav, has been given a clean chit after thorough investigation and interrogation. The clean chit has been given on the grounds that neither she was aware of her father's alleged plan to murder their daughter, nor did she witness the incident. Meanwhile, Deepak Yadav, the father as well as the accused, has been sent for the 14-day judicial custody, and it remains to be very concerning what were exactly the kind of intentions for the father to be shooting his own daughter. And as the statements are coming in, the probe is still underway. The Gurgaon police is also looking into the various angles of this case, which is very shocking given that she was a bright young woman, also excelling in her career. Arzu Seth is joining me live on the broadcast from the accused native village in Wazirabad in Gurugram. Arzu, what more details are you able to fetch at this point of time? As far as the probe is concerned, we are aware about the father giving out the statements as well to the police, confirming his intentions of being in fact too bothered about what people are saying. There are also statements coming in accusing the accused and the father of Radhika by the friends that have spoken on social media, and also said that the kind of environment that Radhika was living in was not at all normal. She was very much controlled by her family, and particularly as a father. Well, definitely NewsX has been reporting from the ground, and now we have reached to the native village of Deepak Yadav, the accused, the father of the national level tennis champion Radhika Yadav. The father has been sent to 14 days judicial custody over the allegation of killing, his 25-year-old daughter. And this is the house of the native house of the Deepak Yadav, where his relatives are still there, and also the neighbors, the landlords are still living here, and we'll directly go across them to understand what was the issue, why Deepak Yadav has killed his daughter. क्या नाम है आपका? राजकुमार जी। राजकुमार जी, आप क्या लगते हैं उनके? राधिका का? नहीं, दीपक के भाई लगते हैं। दीपक के भाई लगते हैं। आप लोगों से कभी भी कुछ इस तरीके का जिक्र हुआ क्या? कुछ राधिका को लेकर कुछ बात हुई? नहीं, कोई जिक्र नहीं हुआ हमारे सामने, कोई जिक्र नहीं आया हमारे सामने, कोई ऐसी बात नहीं करी उसने। दीपक भाई ने कोई समस्या, जो समस्या है तो कोई समाधान होता चाहता वो सब समाधान कराते, पर उसने कोई किसी का आगे जिक्र नहीं करा। ये बताइए, उन्होंने ये जिक्र किया है कि गांव वाले जो है वो टॉन्ट मारते थे उनको कि वो राधिका को वो इतना पढ़ा रहे हैं, मतलब बढ़ा रहे हैं, टेनिस एकेडमी खुलवाई। वो भी नहीं बताया किसी को, गांव वाले कौन ताना मारता है किसी को, भाई किसी को आगे नहीं बताई मैंने, ये बता रहा है वो तो। पहले किसी को नहीं, किसी का आगे नहीं बताई। भाई गांव वाले कोई कहते हैं लड़की की कमाई खा रहा है, हमारा आगे किसी, उसने दीपक ने कोई जिक्र नहीं करा, परिवार आगे किसी के भी आगे जिक्र नहीं करा मैंने। कोई जिक्र करता तो कोई उसका समाधान करते बिल्कुल। गांव वाले कौन कहते हैं ऐसा, ऐसा तो कोई कहता नहीं है वैसे, अगर कहता है तो उसका समाधान होता, ऐसी बात नहीं है। तो आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या वजह हो सकती है, क्यों मार दिया? यो तो भगवान जाने जी क्यों मार दिया, कैसे, क्या गुस्से में, क्या बुद्धिहीन होगी उसकी, क्या करे। नहीं, ऐसा नहीं था दीपक है, आज तक हमारे तो ख्याल में नहीं था ऐसा कर सकता है दीपक, ऐसा नहीं करता। अच्छा, राधिका आती थी गांव? राधिका कभी अपने फादर के साथ, पिता के साथ आई है गांव? हमने तो पापा के साथ तो नहीं, पर उसके अपनी मम्मी के साथ हमारे घर पर आई थी राधिका। हाँ, अपनी ताई दो रहा, अपनी मम्मी के साथ आई थी। एक बार गुड़गांव गई जब, हमने तो जब देखी थी वो। हाँ, वैसे तो मिलती रहती थी, कई दफ़ा शादी शुदी में फंक्शन में खूब मिलती थी। पर ये भी पीछे गुड़गांव कपड़े लेने गई थी जब आई थी राधिका अपनी मम्मी के साथ। हाँ। अच्छा, कभी दीपक कंट्रोल करने की कोशिश करते थे राधिका को कि यहाँ मत जाओ, ऐसा कुछ? ना, ऐसा कोई कंट्रोल नहीं था। ऐसे हमारे कुटुंब में कोई कंट्रोल नहीं था, किसी के पास जाओ, किसी के
किसी घर में जाओ, किसी में आ जाओ, कोई कंट्रोल नहीं करता था राधिका को। वो चाहे हम भी अपने बच्चों को नहीं करते कंट्रोल, किसी चीज का कंट्रोल नहीं। हाँ, करता अपना पर इनका परिवार है ना जी खुद का, तो ये अपना परिवार उनको कंट्रोल नहीं करते। ये इनका परिवार हो गया, खुद से गया, तो ये कंट्रोल क्यों करे हमारा बच्चा ने? भाई अब राजी खुशी का बेरा लेना हो, वैसे मिलन फेटना हो, किस लिए आओ भाई, खूब थारा घर बार है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है की आपस में। आपका क्या नाम है? मेरा सुरेश जी। सुरेश जी, आप क्या लगते हैं? दीपक मेरा वैसे यादव है, मैं जाट हूँ। अच्छा। हाँ मैं जाट हूँ। मैं मतलब इसका मकान में 10 साल किराया पर आया था पहले। अच्छा। हाँ। तो जब आप यहाँ पे 10 साल किराए पे रहे, कभी भी कुछ इस तरीके से कोई नहीं, किसी बात की कोई बात नहीं, ना लड़ाई झगड़ा कोई कहा सुनी, किसी बात की कोई नहीं। कहता नहीं हुई नहीं कही अगर मेरी लड़की सी है, मेरा लड़का, वो लड़का कहीं किराया लेना करता तो नहीं कहता माजरे किराया दे दे भाई, ले जाओ बस यहीं ले जाया करता, भीतर भी ना करता। कहते दीपक भी नहीं आया, दीपक आया तो एक आध भाई दूर तक करके मारता, भाई सुरेश है के जाट भाई किराया दे दे, तो हम दे देता ठा के। जिस तरीके से मारा भी गया, ये नहीं है कि एक गोली चली हो, 5 गोलियां चली, तो क्या गुस्सैल था दीपक? लड़ाई वड़ाई वाला तो कोई बात रही थी नहीं आपस में, ना कदे नहीं। अब उनका हथियार था वो तो भाई देखो जाने हुए किस बात पर हथियार रखे, किस बात पर न लिया दिया भाई, वो इस बात के हमने लाइसेंस कहा था उसका, वो तो लाइसेंस। घर गए? ना मैं घर नहीं गया जी, मैं घर नहीं गया हूँ। घर तो मैं कोई घना इमरजेंसी तरह ही बैठा उठ करनी पड़ेगी तो नहीं हो तो जाना पड़ेगा, एक दो दिन हमने जाना नहीं मांगना पड़ेगा आप पर समाज में। आप लोगों से भी कभी राधिका के बारे में कोई बात नहीं? ना कदे नहीं, कोई ना। राधिका के बारे में कुछ सुनने को कभी मिला कहीं? ना कोई नहीं मिला ना। गलत रिपोर्ट तो हमारा कोई करना ही नहीं आई लड़की का वारा में, लड़की के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं आई हमारे पास कदे भी, ना कदे नहीं किसी बात की भी। हाँ वहाँ छोटी स्थिति जब रहा करते, जब तो जाना करता, फिर वह 10 साल तुम्हारे लगा, 15 साल थे वहाँ जो फिर हमने जाना भाई महाराज इतनी दूर कौन आवाज आपस में, फिर कोई शादी प्रोग्राम है जब डगर जाता ना, तो वैसे तो हम ना जाया करता ना। आप लोगों को भी कभी राधिका के बारे में कुछ सुनने को नहीं, कोई सुनने को नहीं मिली, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी राधिका का बारे में, कोई नहीं सुनी हमने। हाँ कोई। So Simran, definitely, the claim that was made by Deepak Yadav that, the villagers, the relative used to taunt him regarding, regarding the academy that Radhika Yadav has opened, and the way, Deepak Yadav was supporting his daughter. But what the, people here are telling that Deepak Yadav has supported a lot and also will take more, reactions. अगर बात करें तो किस तरीके से दीपक क्या सपोर्ट करते थे अपनी बेटी को, या फिर वो मना करते थे खेलने वगैरह के लिए? ना कोई खेलने के लिए मना नहीं करता था, वो तो बाहर खूब ले जाता था खिलाने के लिए, दोनों खूब जाते थे खेलने के लिए। तो उसने दिन रात एक मेहनत करी है बहुत, हाँ खूब इतना पैसा लगाया खेलने के लिए, उसने खेलने के लिए तो कोई मना ही नहीं करी है। हाँ वो क्या नहीं मना करता खेलने के लिए, उसने तो सारी उम्र उसी के पीछे लगाई है, कोई बाढ़ का के पीछे ही लगाया उसने, पैसे जितने कमाए सब पैसे, भाग दौड़ इतनी करी है, मेहनत कोई नहीं कर सकता। हमारा भाई दीपक ने इतनी मेहनत करी है बेहद। So definitely, he is the brother of Deepak Yadav, the accused, and he's telling that, Radhika has reached to this level just because of the Deepak Yadav, but even they are very shocked what happened and how Deepak Yadav has killed his own daughter. Yes, Simran. Absolutely. In fact, Arzu, as you are speaking to these family members who are in distant relation, but of course know what the kind of person that this accused has been, it is also very shocking, Arzu. And as you are having a word with them, let us also understand what more details are coming in at this point of time as the probe also unfolds and gives out more substance to the larger motive for committing this offense. Thank you very much, Arzu, for joining us live and speaking to these people and bringing us these ground reports.